Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the ecological succession. I hope that from this video all of you clear about the successions, hydrosphere and lithosphere, how can they develop from pioneer to the climax communities. Everyone know, I hope that all of you clear. Today we describe next topic from this chapter, that is the nutrient cycling. Nutrient cycling क्या होता है? What is the nutrient cycling? Nutrient cycling किसको कहते हैं? In the atmosphere you know about them, the plant, living organisms, animal and human beings that is required different type of nutrient for the proper growth. ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड होती है. तो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट इज द न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. हेडिंग जो है आज का क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल. क्या होता है न्यूट्रिएंट साइकिल? दे आर एक्सचेंज, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, सो दैट न्यूट्रिएंट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. उसका एक्सचेंज करना, ठीक है, स्टोर करना एंड ट्रांसफर ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स. जो स्टोरेज है जस्ट लाइक प्रेजेंट इन द सॉइल, एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक्सचेंज होता है एंड दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, जिससे अगेन एंड अगेन जो न्यूट्रिएंट है वह एटमॉस्फेयर में या इन केस ऑफ इकोसिस्टम दैट इज प्रेजेंट. दैट इज क्लियर. तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मीन्स दैट इज द साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. The another term that is used, the biogeochemical cycling. Biogeochemicals. For the bio means living things. Geochemical means some chemicals which are present, just like organic and inorganic components are present in the soil that is required for the living organisms, means for the survive. And when that is dead, plant animals जब dead होते हैं, then again the component they mix with soil and they again they absorb through the plants. ये क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है, साइक्लिंग हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स which जो absorb हो रहा है through the soil, they again come into the ecosystems या environments. ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं biogeochemical cycling. Normally in case of atmosphere there are two type of cycle are occurs. One is the sedimentary cycle. One that is the sedimentary cycle. Another is the gaseous cycle. ठीक है, sedimentary cycles, this is the slowly process in which that is the different type of minerals which are mixed with the soil, because there is the slowly process. Why that is called? Because just like a new formation of soil that is required the rocks. रॉक क्या पेरेंट्स होता है, ठीक है, पेरेंट्स रॉक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. वेदरिंग उसमें होती है, वेदरिंग होने का जो इसमें न्यूट्रिएंट आएंगे, मिनरल्स आएंगे विच आर डिपेंड ऑन द पेरेंट रॉक्स. जो पेरेंट रॉक है किसका बना हुआ है, किस तरह के कंपोनेंट उसमें मिक्स है, ठीक है, वो मिनरल उसमें प्रेजेंट रहेंगे. जिससे मैक्सिमम क्या होता है, फास्फोरस है, आपके कैल्शियम्स है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड देम. तो सेडिमेंट्री साइकिल इन विच दैट इज द slowly process that is occurs. ठीक है, and that is required for the proper growth of animals and human beings and living beings. सबके लिए required होती है. Second one is the gaseous cycle. In the atmosphere different type of gases are present which are used again and again, and they again when that is organism that are died, that they goes in the ecosystem. Just like we take the example of carbohydrate. Carbohydrate के लिए कौन कौन से gases इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, अमोनिया या एमनो एसिड्स, वहां पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है.
So this is the different components which are present in the living organisms bodies in different components form. ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, प्रोटीन फॉर्म में होते हैं, तो इट इज क्लियर, फैट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जब बॉडी डेड होती है, दे आर डिकम्पोज ऑफ द माइक्रोब्स, दे अगेन द गैसेस कहां चले जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है. And mineral which are present inside the body, that is again decomposed the microbes. They goes in the soil. They mix with the soil. Means increase the fertility of soil. Means जहां से प्लांट एब्जॉर्ब किया फूड, न्यूट्रिएंट, मिनरल जो भी एब्जॉर्ब किया थ्रू द सॉइल किया. सॉइल से कहा है प्लांट में फूड फॉर्मेशन हुआ. ठीक, फूड्स के थ्रू सीड, फ्रूट्स जो भी बने, उसको कौन यूज किया, एनिमल किया. ठीक, एनिमल की बॉडी में चला गया कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन या मिनरल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है. ठीक है, अगेन व्हेन द ऑर्गेनिज्म आर डाइड, जब वो डेड होता है, दे आर डिकम्पोज, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. तो जब डिकम्पोज किया जाता है तो जो बॉडी में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो गैसेस है वो गैसेस फॉर्म में बाहर चला जाता है. ठीक है, मिनरल में जो फास्फोरस है, मिनरल में कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम, ये सब कहां चला जाता है, दे आर मिक्स विद द सॉइल, सॉइल में फिर मिक्स हो जाता है और प्लांट फिर अगेन एब्जॉर्ब. यह प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, तो उसी को हम कहें हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल. इसमें दो तरह का है, सेडिमेंट्री है, गैसियस साइकिल. सो हाउ कैन न्यूट्रिएंट साइकिल अकर इन द एटमॉस्फेयर या इन केस ऑफ इकोसिस्टम्स, कैसे होता है इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल? This is depended on the four type of components. ठीक है, ये 4 टाइप के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है. जैसे इनपुट, इन कंपोनेंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट साइकिल है 3 कंपोनेंट्स. न्यूट्रिएंट साइकिल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इनपुट, and second one output, and third one nutrient cycling. In case of input, ecosystem this the receive input of nutrient from external sources. यहाँ पर जो इनपुट में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट जो होते हैं इंटर करता है इकोसिस्टम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस. ठीक है, सोर्सेस की बेस पे बात करें, देयर इज द 4 टाइप सोर्सेस दैट इज इंटर या इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द 4 टाइप्स. वन इज द वेट डिपोजिशन, dry diffusion, third one that is the biological nitrogen fixation, and fourth one weathering. ऑफ रॉक्स. ठीक है, तो जो इनपुट जो कंपोनेंट्स हैं, दिस इज द डिपेंडेंट ऑन 4 टाइप्स या 4 टाइप के इनपुट्स होते हैं विच आर एंटर इनटू द इकोसिस्टम्स. वन इज द वेट डिपोजिशन थ्रू द रेनफॉल. ठीक है, रेनफॉल के कारण वेट जो कंडीशन होता है उसके द्वारा जो डिपोजिट होते हैं, ठीक, विच एंटर इनसाइड द न्यूट्रिएंट साइकिल. ड्राइव डिपोजिशन थ्रू द डस्ट डिपोजिशन, डस्ट के थ्रू जो ट्रांसफर होता है, दैट इज डिफरेंट कंपोनेंट्स. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं विच आर डायरेक्टली कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस इनटू द नाइट्रेट फॉर्म, बिकॉज प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट ओनली. ओके,
And weathering of rocks, this is the required for the soil formation, new soil formations, because the soil are formed through the weathering of the rocks, and this is the parents of the soil. और जो soil होता है, which type of soil are formed, that is dependent on the rocks. Rocks किस तरह का है उस पर ये डिपेंड करता है. That is clear? तो ये 4 steps होते हैं in case of input. So you see here how can they enter in ecosystems. जो न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर रहे थे, ये 3 steps होता है: इनपुट, आउटपुट, न्यूट्रिएंट साइकिल. ठीक है. जैसे फर्स्ट वन इनपुट. इनपुट की बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू. एटमॉस्फेयर में आपका रेनफॉल की बात भी की है. रेनफॉलिंग होता है, वेट डिपोजिशन जो होता है. ठीक है. एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं विच आर एंटर इन केस ऑफ इकोसिस्टम्स. वेदरिंग इनपुट्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. रॉक्स जो डिकम्पोज होते हैं, वेदर होते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं दे आर मिक्स विद द सॉइल, या सॉइल के साथ मिक्स होते जाते हैं. ठीक है. और एटमॉस्फेयर से क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस दैट इज एंटर हियर. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा विच आर एंटर इनटू द इकोसिस्टम्स. ओके. अब क्या होता है, फर्स्ट क्लियर हो गया आपको. डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट आर गैसेस विच एंटर इनटू द इकोसिस्टम्स. ये आपका इनपुट हो गया न्यूट्रिएंट साइकिल का फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. जब इंटर करते हैं जैसे सॉइल में वेदरिंग के द्वारा सॉइल फॉर्मेशन हुआ, सॉइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द वेदरिंग रॉक. जो रॉक आपका वेदरिंग के थ्रू फॉर्मेशन हुआ, विच टाइप ऑफ rocks that is present, they contain different type of minerals. ठीक है. उसमें different type of minerals होंगे. यहाँ एटमॉस्फेयर से डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इंटर इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक. और इसको जो सॉइल में जो प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स. दिस न्यूट्रिएंट और मिनरल दैट इज एब्जॉर्ब बाय द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या प्लांट्स. प्रोड्यूसर मीन्स यहाँ पे क्या है, ग्रीन प्लांट्स दैट इज यूज द मिनरल एंड सॉइल वाटर फॉर द फॉर्मेशन देयर फूड्स. सॉइल के थ्रू ये ग्रोथ, पौधे जो होते हैं ग्रोथ के लिए भी मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से गैसेस लेते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन. नाइट्रोजन दैट इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स. जो सॉइल होता है देयर इज द फ्री लिविंग माइक्रोब्स आर प्रेजेंट विच आर डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस. यू नो अबाउट देम इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर. जो लार्जर अमाउंट गैस है कौन सा है, नाइट्रोजन. बट दे प्लांट कैन नॉट इजिली एब्जॉर्ब देम. प्लांट उसको इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. तो इस नाइट्रोजन गैस को पहले क्या करते हैं बैक्टीरिया, किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में. कहां मिक्स होता है, सॉइल में. सॉइल से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. दिस इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स एज वेल एज इन केस ऑफ ग्रोथ. ठीक है. प्रोड्यूसर के प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है. क्लियर. अब इससे जो फूड बना, या जस्ट लाइक सीरियल्स हुआ, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल्स हुए, ठीक है, उसको कौन यूज करता है, कंज्यूमर करते हैं. दैट इज क्लियर. ये कंज्यूमर्स डिपेंड किस पर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर. प्लांट पर डिपेंड है. क्लियर. ये कंज्यूमर जब डाइड होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर बॉडी जब डाइड होता है, द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, दे आर डिकम्पोज्ड. इसको जब डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोजिशन के बाद दैट इज रिलीज डिफरेंट टाइप गैसेस. जो एटमॉस्फेयर से गैसेस ये एब्जॉर्ब किया था यहाँ पर, तो गैसेस कहां चले गए, अगेन दैट इज गोज इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. एटमॉस्फेयर में चले गए, ये आउटपुट हो गया, एटमॉस्फेयर में चले गए. ठीक. और जो मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, दे अगेन थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आउटपुट. हाइड्रोलॉजिकल मीन्स थ्रू द वाटर के फ्लो के साथ दैट इज गोज सीपेज इनटू द सॉइल. ठीक है. सॉइल के साथ वो जब डिकम्पोज हो जाता है, रेन वाटर और थ्रू द वाटर वो उसके साथ सोल्युलाइज होकर के कहां चला गया, सॉइल में. मीन्स दैट इज रिप्लेनिश्ड हियर. अगेन जो मिनरल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था सॉइल में वो चला गया
ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जो सॉइल में प्रेजेंट है, दिस सॉइल्स या प्रोड्यूसर भी जब डेड एंड डिकम्पोज होते हैं, दे अगेन रिलीज द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जो मिनरल है दे मिक्स विद द सॉइल। तो ये यू सी हियर द कंटिन्यूस दिस साइकिल इज अकर्स हियर। न्यूट्रिएंट जो है, मिनरल्स एज वेल एज द गैसेस दैट इज इनपुट इनसाइड द एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटसाइड। एटमॉस्फेयर से जैसे गैसेस था, वेदरिंग इनपुट्स थ्रू द रॉक्स के थ्रू, वेदरिंग के थ्रू सॉइल में इंटर कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट में क्या आता है, जब ये डिकम्पोज होते हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो कंज्यूमर हो, जब डेड होती है बॉडी, दे रिलीज द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है। देखते हो जहां पे कोई डेड बॉडी होती है, जहां डिकम्पोज हो रहा है, यदि उस एरिया में जाइए तो बहुत गंद स्मेल आती है, दुर्गंध जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों आती है? बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जब डिकम्पोज करता है बॉडी को तो रिलीज होती है गैसेस, और वो गैसेस कहां चले जाते हैं, फिर अगेन गोज द एटमॉस्फेयर। तो ये आउटपुट हो गया, दे अगेन एब्सॉर्ब दिस गैसेस, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, जो मिनरल है कुछ वाटर के साथ मिक्स होकर कहां चले गए, इनसाइड द सॉइल, ठीक है। और कुछ सॉइल के साथ ही मिक्स रहे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इज मिक्स विद द सॉइल। इस सॉइल का फिर प्लांट एब्सॉर्ब कर रहा है। सो यू सी हियर दिस द कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट इज अकर इन इकोसिस्टम। मीन्स यू सी हियर दोनों तरह के न्यूट्रिएंट की बात की है, सेडिमेंट्री एज वेल एज गैसियस। इनसाइड देम वी डिस्कस हियर द न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में दोनों आपको बता दिए कि गैसियस एज वेल एज द मिनरल मीन्स सेडिमेंट्री, हाउ कैन दे अकर इनसाइड द ecosystems, how can they absorb? So I hope that all of it clear from this videos. Nutrient cycling clear हो गया होगा। Thank you for watching the videos. If you like them then subscribe them. Okay.